ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم موجود ہیں ایک لاہور کی بہترین چھت پر، جن کے عرصہ دراز سے زبردست رزلٹ آ رہا ہے اور ہر سال یہ کھیل میں موجود ہوتے ہیں. اس لیے پہلے سے آپ کو بتایا نہیں گیا تھا، نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا تھا. ایک شک تھا کہ شاید، وعلیکم السلام خان محمد بارہ بھائی، کہ شاید اس ایریا میں انٹرنیٹ کی فراہمی جو ہے وہ ہوتی ہے یا نہیں، لیکن الحمدللہ یہاں پر آپ سے رابطے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. میں نے دیکھا کہ انٹرنیٹ آ رہا ہے یہاں پر، تو استاد جی سے بات چیت ہم نے کرتے ہیں. کچھ رسمی بات چیت میں کر چکا ہوں ان سے پہلے سے. 1978 سے یہ شوق میں مسلسل موجود ہیں، اور استاد یعقوب سائیں جو کہ استاد یعقوب سائیں گوال منڈی سے، یہ ان کے شاگرد ہوئے 1994 میں. 96 میں یہ ماشاءاللہ 96 میں یہ لاہور چیمپئن ہوئے. 94 میں یہ باقاعدہ شاگرد ہوئے. اسی وقت ان کو استادی دستار ملی. تو کچھ پیارے دوستوں، کچھ کھلاڑی اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ وہ پوری زندگی یاد رہتی ہے. میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی استاد جی سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے. تو انہوں نے ایک ایسی بات بتائی کہ وہ میرے ذہن پہ نقش ہو گئی. انہوں نے کہا عید والا دن بھی ہو، ہم نے اپنے کبوتروں کو اڑا دینا. اور یہ پریکٹس سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. نسخے اور ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے. پریکٹس بہت اچھی چیز ہے. جتنی اچھی پریکٹس ہوگی، اب یہاں پر ہمارے سامنے بیٹھے بھی کبوتروں کو بے شمار، یہاں اوپر چیلیں بھی ہیں، اوپر عقاب بھی ہیں، بیریاں بھی ہیں، تنگ کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں. اور ہر سال بھرپور شوق ہوتا ہے ان کا. بہت بڑی چھتوں سے، بڑے بڑے ناموں سے، شہر لاہور میں بھی اور آؤٹ آف لاہور بھی ان کا شوق ہوتا ہے. تو ہمارے ساتھ، ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں استاد ملا ندیم تاراں والے. میں کیمرہ ان کی طرف کرتا ہوں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. آپ کمنٹس میں اگر کوئی کویشچن کرنا چاہیں تو آپ کمنٹس میں کویشچن کر سکتے ہیں. جتنے بھی دوستوں نے استاد ملا ندیم تاراں والا کو سلام کیا ہے، ہم ان کی طرف لے جاتے ہیں. استاد جی، کافی دوستوں نے آپ کو سلام کہا ہے. وعلیکم السلام. تمام دوستوں کا سلام. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. میں کہہ رہا تھوڑا جا قریب ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ ادھر. جی ماشاءاللہ جی، ڈائریکشن ہم نے چینج کی ہے. بہت شکریہ عمران افریدی بھائی، اور جو بھی دوست جہاں جہاں سے دیکھ رہے ہیں. استاد جی ماشاءاللہ آج کل کبوتروں کے پر پورے ہو گئے ہیں. جی جی. تو کچھ لوگوں کے کبوتروں کے پروں میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا. آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کا اسپیشل ٹریٹمنٹ ان دنوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ان دنوں کے لیے سب سے پہلے تو اچھا دانہ ڈالنا چاہیے جی، جس میں کالے چنے ہیں، کنک ہے، مکئی ہے اور دیسی گھی کی روٹی ہے. ٹھیک ہے. میری نظر میں جب کٹائی کے دوران اس سے اچھا دانہ کوئی نہیں آیا. جی، میں تو یہی استعمال کرتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا استاد جی، یہ جو آپ صبح بورے ڈالتے ہیں، اس کا کیا ٹائم ہے؟ یہ ہم صبح 9 ساڑھے 9 بجے ڈالتے ہیں. یہ سمجھے ہم ناشتہ دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. 9 ساڑھے 9 بجے آپ بورے ڈالتے ہیں، اس کے بعد آپ دانہ کس ٹائم ڈالتے ہیں؟ دانہ ڈالتے ہیں 3:30 بجے. 3:30 بجے. جی دوستو، آپ نے روٹین دیکھی ہے. صبح 9 بجے بورے اور 3:30 بجے دانہ. اور دانے میں استاد جی نے بتایا ہے گندم، مکئی اور کالے چنے. باجرہ نہیں ڈالتے ابھی؟ باجرہ آپ کب سے سٹارٹ کریں گے؟ باجرہ جب ہمارے کبوتر اڑنے لگتے ہیں نا، پھر استعمال کریں. باجرہ پیارے دوستو جب کبوتر اڑنے لگ جائیں گے
तब स्टार्ट होगा। जी शजू फैजी साहब कराची से सलाम कह रहे हैं आपको। वालेकुम अस्सलाम। और प्यारे दोस्तों, इस छत के बारे में कोई रस्मी तारफ़ जो है वो मेरा ख्याल है नहीं बनता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इनका पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी इस छत का एक अपना मुकाम है, एक अपना नाम है। और हर साल जो भी किसी भी कप की तकरीब तकसीम इनामात होती है, ये दोनों भाई माशाल्लाह उस स्टेज पर नज़र आते हैं और पोजीशन के साथ नज़र आते हैं। अच्छा उस्ताद जी, आप ये प्रवास के दिनों के लिए नए शायकीन को जो कि आपसे कुछ सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं बेचारे कि वो दूर दराज रहते हैं लेकिन वो उनका एक इंटरनेट ज़रिया है। आप प्रवास के दिनों में ये जब हम फिरते शुरू कर देंगे, इब्तदाई दिनों में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे दोस्तों को कि आप किस तरह से लेकर चलें अपने कबूतरों को? जब कबूतर हम बाहर निकाल देना, हम खाली बाजरा देते हैं कबूतरों को। 2 बजे 8 बजे कबूतर बाहर छोड़ते हैं, 2 बजे दाना डाल के उनको बंद कर देते हैं जी। उसके बाद हम उनको उड़ाना शुरू कर देते हैं। 15-20 दिन हम उनको खाली बाजरे पे उड़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद जब कबूतर प्रवास देने लगते हैं, उसके बाद हम उनको बादाम शुरू कर देते हैं खुराक। ठीक है। खुराक के साथ बाजरा और देसी घी के बोरे देते हैं। ये खुराक हम देते हैं। अच्छा उस्ताद जी, आपने माशाल्लाह पूरे ये उस्ताद वही साहब भी आ गए हैं, वेलकम करते हैं माशाल्लाह, साथ आ गए हैं। तो दोनों भाई इस वक्त मौजूद हैं। थोड़े क्वेश्चन उनसे करेंगे, थोड़े उनसे करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक हमारा अच्छा सेशन रहेगा। उस्ताद जी ये बताएं, आपने 1978 से अब तक बड़े बड़े नामों से आपने शौक किया है। आप ईमानदारी से, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस खिलाड़ी के साथ आया कि जिसकी फेयर गेम है और जिसने कभी कोई ऐसा नहीं किया जिसका आप नाम लेना चाहेंगे बाकायदा? एक तो मैं सबसे पहले मेरा चौधरी मोइनुद्दीन से बहुत अच्छा शौक है जी। अच्छा खिलाड़ी है, साफ सुथरा शौक किया उसने, ईमानदार खिलाड़ी है। ठीक है, हार जीत खेल का हिस्सा है। हार सबसे अच्छा शौकीन ये है। एक हमारे इधर लाहौर में है सरदार मोगा जी, बहुत अच्छा शौकीन है। बाकी भी अदर क्लब वाला हो गया, चेयरमैन इम्तियाज, मियां ताज, काफी नाम है माशाल्लाह। ये सब अच्छे शौकीन है। बिल्कुल सही। वही सब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बेहतरीन हरीफ जो है वो खेल के लिए क्यों जरूरी है, और आपका बेहतरीन हरीफ आपने मतलब किस तरह फील किया कि कैसे? सर सबसे पहले बात ये, जो आपका बेहतरीन हरीफ है ना, वो आपका दोस्त होना चाहिए जी। ऐसा ना हो कि जैसे कि दुश्मनी है। नहीं, आपका भाइयों वाला भाई होना चाहिए। सब शौकीन अच्छे हैं, सब हमारे भाई हैं। जो भी बाजी लगाता है वो अच्छा प्लेयर है, अच्छा खिलाड़ी है, क्या समझे आप। लेकिन भाई आपका ऐसा हो कि सब अच्छे प्यार मोहब्बत, हार जीत एक खेल का हिस्सा है। इसमें अना का मसला कोई ना बनाए। ये कभी हार के कभी जीत के, ये खेल है। मेरा ये सबको पैगाम है, जीत जो है वो आपको नुकसान पहुंचाती है। किस चीज का नुकसान? कि आप गाफिल हो जाते हैं। हारने के बाद जो आपका सिस्टम है ना, आपको खुद पता चलता है कि मुझे में खामी कौन सी है, मैं कहाँ गलत हूँ। हार आपके नुक्स निकालती है। हार बेहतरीन, क्या बात है। अगर इसको कोई बंदा गाइड करे तो बहुत अच्छी बात की है उस्ताद भाई साहब ने। वो कहते हैं जी कि जब तक बंदा कोई हारता नहीं वो सीखता नहीं है। हार आपकी सलाह करती है और जीत जो है वो आपको मगरूर कर देती है, आपको गाफिल कर देती है। अच्छा उस्ताद जी, आपने जो 3-4 नाम लिए हैं, एक लाल आंखों वाली मादा आपके पास बड़ी अच्छी उड़ी है, एक ग्यासे वाला कबूतर आपके पास बहुत अच्छा उड़ा है, एक आपके पास आपने लाखों में एक कबूतरी बहुत अच्छी उड़ी है। तो कबूतर तो इस छत पर हर साल ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। और जब लाहौर के कबूतर काफ़ी खिलाड़ियों के बैठ चुके होते हैं और आपके 3, 4, 5 ऊपर होते हैं, तो लोग उम्मीद निकाल देते हैं कि हो सकता है कि आएँ या ना आएँ, लेकिन ऊपर से आने शुरू हो जाते हैं कबूतर। ये जो तीनों कबूतर थे, आप इनकी डिटेल कुछ बताना चाहेंगे कि ये किस किस नस्ल से थे, क्रॉस में थे, किस किस क्रॉस में थे? आप दोस्तों के शौक के लिए ये चीज़ें बताना चाहेंगे? तो मेरी लाल आंख वाली मादी उड़ रही है ना, अभी भी मेरे पास है। वो मादी है गोल्डन मादी है, अभी पास है मेरे। ठीक है, उसके बाद जो ग्यासे वाला कबूतर था वो टैडी गोल्डन का क्रॉस था, और जो लाखों में एक थी वो भी टैडी गोल्डन कबूतरों के क्रॉस में थी जी। मतलब टैडी और गोल्डन का क्रॉस में ज्यादा आपके पास बेटर परफॉर्मेंस रही है। अच्छा, ये जो आपके पास लाखी कबूतर हैं, इनका क्या मतलब इनका क्या बैकग्राउंड है और इनके
बच्चे चेत में उड़ते मैंने देखे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे और जबरदस्त हाँ उड़ा। जी, ये असल में हमारा शौक ये है, अच्छा इसलिए कि हम छोटे छोटे थे दोनों, ये मुझसे छोटा है, हमें बचपन से जो शौक पड़ा ना ये इन कबूतरों से पड़ा, और हमने ये अपने शौक के लिए रखे हुए हैं। आप हमारे पास घर भी चले जाए जोड़ों में देखें, आपको ये 2-4 जोड़े लाल भी नजर आएंगे, इधर भी नजर आएंगे, लेकिन ये अब जो हमारे पास है ना, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये कबूतर अपना नाम करेंगे। जबरदस्त जबरदस्त। इनके ऊपर हमने काफी मेहनत की है और ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा शौक है। अच्छा उस्ताद जी, मैं गुजारिश करूंगा कि किसी भाई से कहें वो लाल आंखों वाली मादी जो यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी। अच्छा उस्ताद जी, लाखे कबूतरों की बात चल रही थी। प्यारे दोस्तों, ये कबूतर एक सीजन में मेरे पास ये कबूतर रहे हैं। इन कबूतरों में एक चीज़ मैंने देखी है, उस्ताद जी से भी पूछते हैं वो चीज़, बहुत दूर अगर मौसम खराब हो जाता है तो ये बिल्कुल इस तरह से गुच्छू मुच्छू बन के ये अपने घर को वापस आ जाते हैं, और दूसरे कबूतरों से ज़्यादा इनकी सेंस है घर के वापसी की। उस्ताद जी आप क्या कहते हैं, कोई आपके साथ ऐसा? मेरे पास जितने कबूतर हैं उनमें सबसे समझदार ये लाखे ही हैं। ये मेरा दोस्त है रायफरूब ननकाना साहब जी। वो मैंने उनसे ये कपड़े लिए थे, ठीक है, अपने घर की मादियां डाल के ना टैडी उसमें से यानी ये बनाए। अच्छा अच्छा। ये ज्यादती अगर मैं उनका नाम ना लूं, राय फरूक रायफरूब ननकाना साहब, ननकाना हाँ, साहब। हाँ, चौहान में शकील है, मेरा दोस्त है। सही है। आपने टैडी उसके साथ क्रॉस करके बाद में अपनी ब्रीड बनाई। आपने ब्रीड बनाई है, ठीक है। लेकिन और वो बेस वही है, 2 उधर ननकाना साहब के हैं। जी वहीद भाई, एक लाखा भी लेके आइएगा। अच्छा उस्ताद जी, जो मौजूदा अपना शौक चल रहा है लाहौर में अब जो शौक चल रहा है उसमें ग्रुप बंदियां और हर ये तो चीज़ हर साल होती रहती है। वैसे ओवरऑल आप इस शौक को किस हवाले से देखते हैं? लेकिन ये बहुत अच्छा शौक है जी इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। जी ये शौक ये इससे मुखलस होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इश्क का शौक नहीं है। ठीक है। हमें इससे मुखलस होना चाहिए, चाहे हमारा मुखालिफ भी है ना उससे भी मुखलस होना चाहिए। शौक फेयर होना चाहिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हम एक बरादरी हैं, हम सब बराबर हैं, कोई इसमें चाहे बड़ा शौकीन है चाहे छोटा शौकीन है। हर बंदा जो है ना शौक करता है वो हमारा बरादरी भाई है। मैं तो यही कहूँगा सियासत में नहीं, प्यार मतलब से शौक होना चाहिए, अपने हरीफ से भी मोहब्बत करनी चाहिए। जी और लाहौर एक यूनिवर्सिटी है, इसमें मिसाल कायम होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं जी प्यारे दोस्तों, ये फीमेल जो है ये आ गई है, उस्ताद जी के हाथ में है। ये उस्ताद जी कितने साल हो गए उड़ते हुए इसको? 7 साल। 7 साल हो गए इसको उड़ते हुए। और इसकी परवाज क्या रही है? ये 6 बजे के बाद ही बैठ रही है, कभी एक आधी मरतबा होगा ये 6 बजे से पहले बैठी हो। ये जो है ना जेठ में नहीं उड़ाते, सही। ये अस्सू की जो वनडे होते हैं या वसाख के वनडे होते हैं उसमें उड़ाते हैं, उसमें ये 6 बजे के बाद ही बैठती है। ले जी प्यारे दोस्तों, इसकी आप आंख देख सकते हैं। जो दोस्त ये शोर करते हैं कुछ के भाई ज्यादा तेज आंख हो जाए तो कबूतर घर नहीं बैठता, उस्ताद जी वापसी इसकी कैसी है? वापसी गर्मी हो सर्दी हो तूफान हो, ये इंसान है, ये क्या? सबसे पहले घर पहुंच गया। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात की है। ये इंसान है जी, मतलब इंसानों